तुषार खंडेलवाल। Very good. Vidya, your turn. Um, Sorry. My name is Vidya. Perfect. Very good. You also have patted the dog very well. And now dog is wagging the tail. Okay. Over to Gajendra. Gajendra, your turn. Yeah, yes, sir. Yeah, hi. My name is G- 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 Gajendra Sharma. Very good. Thank you so much. Yogeshwari, your turn. My name is Yogeshwari Harne. बहुत बढ़िया। आपने भी कुत्ते को के सर पे हाथ फेर दिया आज। असली वाले कुत्ते के सर पे। सॉफ्ट टॉय नहीं। अच्छा, अरहम रफीक, अपने नाम पे हकलाना है अरहम। Sir. My name is my name is Arham Rafiq. वेरी गुड अरहम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर्थ। My name is Samarth Chawla. बहुत बढ़िया समर्थ। डॉक्टर रजनीकांत। र, 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 रजनीकांत राठौर। बहुत बढ़िया। आज डॉक्टर साहब आपने भी कुत्ते को छू लिया अच्छी तरह से। अभी कुत्ता कभी काटेगा नहीं आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप सब एक पल को सोचें, if you recall the first time when you went in a block in classroom or in public, remember how your whole body reacted to it. Maybe you trembled, maybe your stomach felt very hollow, maybe you had a great urge to run to toilet. Your whole body was your whole body reacted to this little thing happening just here. But today, now when you are doing voluntary stammering, that kind of thing has not happened now. This is called desensitization. This is called exposure therapy. You are exposing yourself willingly, voluntarily, to a block, because the block is the biggest bugaboo for you. मतलब आपके दिल दिमाग में जो सबसे बड़ा जो जो डर है वो ये ब्लॉक का ही है कि और सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा, बस अगर मैं ब्लॉक में चला गया तो क्या होगा। और इसीलिए इसी से बचने के लिए लोग शब्दों को बदलते हैं, लेकिन कई बार शब्द नहीं मिलते हैं तो तब वो फंस जाते हैं। एक लड़के ने मुझे बताया था, वो बीटेक था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर से उसके आए थे, हमेशा बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो भी एक उसके एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया, जहाँ पे उससे कुछ पूछा गया और उसका जवाब में बोलना था एक्टिव सर्वर पेजेस। तो एक्टिव पे वो ब्लॉक में चला गया और वो एक्टिव बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसने और उसको ये भी पता था एज ए बीटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक होने के नाते उसे पता था कि एक्टिव सर्वर पेजेस का कोई सिनोनिम नहीं है, उसका और कोई उसका दूसरा नाम ही नहीं है, अब वो क्या बोले। तो बहुत देर तक संघर्ष करता रहा, फिर उसने बोल दिया सर्वर पेजेस, एंड ही वॉज फेल्ड। ही फेल्ड क्योंकि जो उसका एग्जाम ले रहा था उसको मालूम था कि एक्टिव इज द की वर्ड, और किसी को एक्टिव नहीं पता तो उसे और क्या पता होगा, इसलिए उसको उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने डर के ऊपर विजय पाएं। It's very important to challenge your fears and expose yourself willingly to challenging situations. Those of you who who are pursuing longevity and wellness and all that, they must be knowing that nowadays in the West and in many big cities, people who are seeking good health, they are doing something unusual. It's called
cold exposure. In Iceland, in Europe, they dig a hole in the frozen ice, and they dive into that very cold water, and then they stay there for some minutes, and they increase the duration over the period of days. So पहले दिन suppose they jumped into the freezing water for 1 minute, they immediately came out. Next day they will make it 1 minute 10 seconds. Why? Because the idea is that whatever challenges your physiology, your body, will also improve your immune system. So apply the same funda here. If stammering purposely in presence of strangers or other people is challenging you somewhere emotionally, it must be making you strong emotionally. And that's the whole idea behind voluntary stammering, which has been highly misunderstood by so many people. So many people say, हम तो हकलाना ठीक करने आए हैं यहाँ पे, और तुम कह रहे हो जानबूझ के हकलाओ, ये तो पागलपन है। वो अगले दिन भाग जाते हैं। वो कहते हैं तीसरा पागलपन है एकदम। सो इट्स, लेकिन ये लॉजिक यही है कि व्हेन यू डू वॉलंटरी स्टैमरिंग, यू रीगेन कंट्रोल ओवर योर इमोशनल रिएक्शंस, योर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। पहली बार जब आप हकलाए थे तो आपका हार्ट रेट डेफिनेटली वेंट अबव 100, बट नाउ व्हेन यू स्टैमर, it will maybe from 80 to it will go to 84, 86, that's all. And when your heart rate beats fast, then your body reads it as a impending danger, and that starts a secondary reaction that now I am about to have a heart attack. So इसीलिए it's very important that we desensitize ourselves, so that even when we are in our block, our heart rate doesn't shoots up, our BP doesn't shoots up, our face remains normal, we can stammer comfortably. So next round is where we will say our name, only name, and stammer gently and effortlessly, like सत्येंद्र। ठीक है, इसे इसको आप जेंटल स्टैमरिंग भी कह सकते हैं, इसको आप बाउंसिंग भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोलॉन्गेशन इफ आई से सत्येंद्र, सत्येंद्र। तो अभी थोड़ा आराम से हल्के से हकलाएंगे और थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर देंगे। तो पहले हम अगर ऐसे बोले थे, अगर पहले हमने बोला था मेरा नाम सत्येंद्र है, अब मैं बोल रहा हूँ सत्येंद्र। तो स्टार्टिंग विद डॉक्टर विजय, केवल नाम। विजय। परफेक्ट। रजनीकांत। रजनीकांत राठौड़। वेरी वेरी गुड। विद्या। विद्या। परफेक्ट। तुषार। तुषार। बहुत अच्छा। अंकित। अंकित। गुड। योगेश्वरी। योगेश्वरी। गुड। अरहम। आ आ आ अरहम रफीक। परफेक्ट। समर्थ। स स समर्थ। गजेंद्र। गजेंद्र। परफेक्ट। अब हम इसी तरह से अपने नाम को बोलेंगे, बट वी विल यूज ए डिफरेंट टेक्निक। अभी सभी ने लगभग जो है बाउंसिंग इस्तेमाल किया था, अभी हम थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग करके बोलेंगे। तो मैं सबका नाम पहले एक बार मैं करके दिखा दूंगा, फिर आप भी वैसे ही करने की कोशिश करना। तो जैसे मैं अपने नाम पे करूंगा तो सत्येंद्र, और एक तरीका और भी है सत्येंद्र। मेरा नाम सत्येंद्र है। डॉक्टर विजय को ऐसे बोलना होगा विजय 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 अवारे। रजनीकांत बोलेंगे रजनीकांत रजनीकांत। विद्या बोलेंगी विद्या। तुषार बोलेंगे तुषार खंडेलवाल। तो सेकंड नेम सरनेम आप नॉर्मल स्पीड में बोलना,
लेकिन फर्स्ट नेम जो है वो उसको जरूर आप फर्स्ट साउंड को थोड़ा सा खींचना। तो जैसे तुषार खंडेलवाल को बोलना है, बाउंसिंग में बोलेंगे तो आप बोलेंगे तू तुषार खंडेलवाल। प्रोलॉन्गेशन से बोलना है तो बोलेंगे तुषार खंडेलवाल। मैं बोलूंगा सत्येंद्र श्रीवास्तव, विद्या बोलेंगी विद्या जयशंकर, और हम बोलेंगे हम रफीक, हम रफीक। अंकित बोलेंगे अंकित सिंह। योगेश्वरी बोलेंगी योगेश्वरी, और फिर सरनेम बोलेंगे। गजेंद्र बोलेंगे गजेंद्र शर्मा। तो कोशिश करना है कि जिस वर्ड पे आपको प्रोलॉन्ग करना है वही वर्ड आप प्रोलॉन्ग करें। पूरे सेंटेंस के प्रोलॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि पूरा सेंटेंस ही प्रोलॉन्ग करने लग जाते हैं। अगर आपने कभी किया है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। मगर द एंड रिजल्ट वो ये है कि किसी ने पूछा कि एक्टिव सर्वर पेजेस क्या करते हैं, तो मैं से बताऊंगा एक्टिव सर्वर पेजेस बड़ी काम की चीज़ है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। तो बाकी सारे वर्ड मैंने नॉर्मल स्पीड में बोले, सिर्फ एक्टिव को मैंने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया क्योंकि मुझे एक्टिव पे डर था फंसने का। तो अभी सिर्फ नाम को प्रोलॉन्ग करेंगे, केवल नाम। ओवर टू डॉक्टर विजय। विजय आवारे, परफेक्ट। रजनीकांत। रजनीकांत राठौर। विद्या। विद्या लालगुडी जयशंकर। परफेक्ट। तुषार। तुषार खंडेलवाल। अंकित। अंकित राज सिंह। थैंक यू। अरहम। अरहम रफीक। योगेश्वरी। योगेश्वरी हरिणी। थैंक यू। गजेंद्र। गजेंद्र शर्मा। परफेक्ट। समर्थ। समर्थ चावला। परफेक्ट। तो अभी मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने सेल फोन में खोल लेना, गूगल डॉक है ये वही वाला डॉक्यूमेंट है जो हमने कुछ समय पहले प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था। तो इसमें आपको जाके बाउंसिंग और प्रोलॉन्गेशन की प्रैक्टिस करें। तो पहले राउंड में चाहता हूँ कि आप बाउंसिंग की प्रैक्टिस करें। तो सारे वर्ड जो अंडरलाइंड हैं या नहीं भी हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं एवरी सेकंड वर्ड पे बाउंस करूंगा। ठीक है, तो पहले एक पार्टनर करेगा फिर दूसरा करेगा, और फिर आप बाद में एक दूसरे को फीडबैक देंगे कि हाँ आपकी बाउंसिंग अच्छी थी, या यहाँ पे थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्ट्रगल था। फिर भी बाउंसिंग का मतलब यही है कि चेहरे का स्ट्रगल गायब हो जाए। जब हम हकला रहे हैं तो चेहरे पे स्ट्रगल होता है। तु- 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 तुषार, ये स्ट्रगल है, चेहरे पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं बाउंसिंग करने का मैंने मन बना लिया है, and if I am able to do a proper bouncing, then there should be no struggle visible on my face. I should be able to say, my name is Tushar Khandelwal. Even I should not blink. तो ये दिस इज ए साइन ऑफ सक्सेस। आप एक दूसरे को देखिए और एक दूसरे को बाद में फीडबैक दीजिए कि तुमने जब बाउंस किया तो कभी कभी तुम्हारी पलकें झपक रही थी, या तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा स्ट्रगल सा था। तो ये बातें आपको एक दूसरे को बतानी है, और साथ में एनकरेजिंग फीडबैक भी देना। मतलब सिर्फ नेगेटिव फीडबैक ही मत देना। ऐसा ना हो कि आपका साथी जो है वो उसके बाद बोलना ही बंद कर दे कि यार मैं कुछ ही बोलता हूँ गड़बड़ हो जाती है, मैं अब चुप रहूंगा। थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक भी देना, और हर इंसान के हर एक्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव जरूर मिल जाएगा। तो लेट मी पुट यू इन डिफरेंट रूम्स। आज हम लोग 11 लोग हैं, 10 लोग हैं एक्चुअली। सो लेट मी मेक इट 5 रूम्स। मैं एक दो लोगों को रीअरेंज करूंगा मैं, तो आप फिक्र मत करना। ओपन कर दिया है मैंने। तो मैं विद्या और योगेश्वरी को एक रूम में डाल देता हूँ। अ, आपके उस पे आ जाएगा तो आप लोग
हाँ चलिए गजेंद्र, प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, पहले मैं कर दे रहा हूँ, फिर आप भी करना, ठीक है? तो इस ओके। डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर, ये है पेज नंबर, एक मिनट, ये है पेज नंबर 4 पे आ जाना। 4 पे, ओके हेडिंग है, हेडिंग है वीएस बाउंसिंग और प्रोलॉन्गेशन। तो पहले मैं कर रहा हूं, आप देखना है इसको। ओके। तो मैं पढ़ रहा हूं और मैं अंडरलाइन वर्ड को मैं बाउंस करूंगा। दोस्तों, तीसा जयपुर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उ, उम्मीद है कि आप भी बेहद एक्साइटेड हैं एनसी को ले लेकर। मुझे यह यकीन है कि ये ती, 3 दिन ब ब बहुत अच्छे ढंग से बीतेंगे। अब आपकी बारी, गजेंद्र। यस सर। दोस्तों, टीसा जयपुर में आ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आप भी बेहद एक्साइटेड हैं एनसी को ल ल लेकर। मुझे यह यकीन है कि ये एक मिनट, एक तीन। मिनट, एक मिनट। यस सर। जहाँ पे आपने बोला है एनसी को ल लेकर, ओके। इसमें ज्यादा सही बाउंसिंग ये होगी कि लेकर में जो पहली साउंड है वो है ले, है ना? ले। या। न कि ला, न कि ला। ओके। तो अगर आप ले। लेकर में, अगर आप पहले से ले करके लेकर बोलेंगे तो आपको लेकर निकलना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ओके जैसे ओके कि sure। रेस के पहले जो है वो दौड़ने वाले अपना दायां कदम आगे रख लेते हैं और बॉडी की पोजीशन बना लेते हैं दौड़ने की, ताकि सीटी बजते ही वो एकदम बिजली की तरह दौड़ जाए। तो उसी तरह या से जो श्योर। है, अगर हमारा मुंह जो है, आर्टिकुलेटर्स जो है, अगर वो ले बोलने की पोजीशन में है, ले, तो तब 1 सेकंड के बाद वो लेकर बोल देंगे। लेकिन ल को फिर ले बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो यस इसलिए आप यस ख्याल राइट। रखना कि जो भी वर्ड का जो पहली साउंड है, ना कि अल्फाबेट, अल्फाबेट और ओके। साउंड में फर्क है। जैसे एग्जांपल यस के यस। लिए, किसी का नाम है पीटर, तो पीटर में पहली साउंड जो है वो पी है, मगर अल्फाबेट जो है वो प है ना? अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखेंगे तो प और फिर बड़ी की मात्रा ट। तो अल्फाबेट जरूर प है, मगर पहली साउंड जो है वो है पी। तो पी पी पीटर बोलना ज्यादा सही है बनिस्बत प पीटर के। ओके ठीक सर है, श्योर। ओके, ओके कैरी ऑन। हाँ ओके चलिए। ओके ठीक है, शुरू से करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके। दोस्तों, टीशा जयपुर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आप भी बेहद एक्साइटेड हैं एनसी को ले ले लेकर। मुझे यह यकीन है कि ये 3 दिन बहुत अच्छे ढंग से भी बीतेंगे। मगर इन सब में आपकी भी एक बड़ी भूमिका है। जब 100 अजनबी इकट्ठे होते हैं तो छोटी मोटी गलतफहमियां मुमकिन हैं। इनसे कैसे बचा जाए? अगर इन कुछ बातों का सब ध्यान रखें तो एएनसी सभी के लिए ए, ए, एक सुनहरी
या यादगार साबित होगी। पहली बात, सभी स स सत्रों सभी सत्रों में समय पर पहुंचे और ही हिस्सा लें। सवाल पूछें। फीडबैक दें। जब आप की किसी सेशन में देर से पहुंचते हैं तो सभी प्रतिभागियों को तकलीफ होती और समय बर्बाद होता है। अब इसी के ऊपर प्रोलॉन्गेशन करना है, इसी पैराग्राफ के ऊपर। ओके, श्योर। हाँ। दोस्तों, टीसा जयपुर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आप भी बेहद एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड को एनसी थोड़ा और को लंबा करना जरा। एक्साइटेड को थोड़ा और लंबा करना। ओके एक्साइटेड। ओके और अभी जब भी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा और उसको प्रोनाउंस करना, यानी कि और लंबा करना, प्रोलॉन्गेशन। ओके सर। ओके, आई विल ट्राई। ठीक। ठीक है, शुरू से करता हूँ मैं इसी को। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। दोस्तों, टीसा जयपुर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आप भी बेहद एक्साइटेड हैं। एनसी को लेकर मुझे यकीन है कि ये 3 दिन थोड़ा बहुत मुस्कराना, थोड़ा थोड़ा मुस्कराना जरा। ओके सर। हाँ, वो हम भूल थोड़ा जाते हैं। यस। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आप कभी देखना कि कभी आप जब यस। खुल के हंसते हैं या रिलैक्स होते हैं, तो तो उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। आप ओके। वैसे आप बिहार से क्या गजेंद्र? यस सर, बिहार से हूँ। अच्छा, आपने उसका नाम सुना है, अजीत भारती का? अजीत हाँ, सुना है। भारती। हाँ हाँ। आज मैं उनका एक रोस्ट सुन रहा था, रोस्ट। वो ओके। अक्सर हाँ। रोस्ट करते हैं, और हिंदी में हम्म। बहुत अच्छा व्यंग बोलते हैं, मतलब व्यंग बड़ा अच्छा है उनका। तो मैं तो सुन उनकी रहा था पकड़ वो, बहुत और अच्छी है हिंदी में। हाँ, अच्छी पकड़ है हिंदी पे भी। और वो जो सामयिक मुद्दे हैं, तो वो किसी को रोस्ट कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं हंसते से लोटपोट हो गया। मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था, और ओके। मॉर्निंग वॉक में हंसते हंसते मैं कितना दूर निकल गया मुझे होश ही नहीं रहा, मैं बहुत दूर चला गया आज मैं। तो जब हम हंस रहे हैं, तो आप जो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत ही एफर्टलेस हो जाती है, और उसमें आप एकदम रम जाते हैं। तो थोड़ा सा ओके सर, आई कॉन्शियसली विल। मुस्कुराते हैं। या आई विल और ट्राई धीरे दैट। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, धीमे धीमे आदत बन जाएगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट। हाँ। ओके। हम्म। एनसी को ले सॉरी आई एनसी को लेकर मुझे यकीन है कि ये 3 दिन बहुत अच्छे ढंग से बीतेंगे। मगर इन सब में आपकी भी एक बड़ी भूमिका है। जब 100 अजनबी इकट्ठे होते हैं तो छोटी मोटी गलतफहमियां मुमकिन हैं। इनसे कैसे बचा जाए? अगर इन कुछ बातों का सब ध्यान रखें तो एनसी सभी के लिए एक सुनहरी यादगार साबित होगी। बहुत बढ़िया, बहुत पहली बढ़िया। हम्म। बात, हम्म। सभी सत्रों में समय पर पहुंचें और हिस्सा लें। सवाल पूछें, फीडबैक दें। जब आप किसी सेशन में देर से पहुंचते हैं तो सभी प्रतिभागियों को
तकलीफ होती और समय बर्बाद होता है। बहुत बढ़िया गजेंद्र, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अब थोड़ा सा हम इसको इनफॉर्मल बातचीत के रूप में यूज ओके करेंगे। ठीक ओके। है, अभी अभी स्क्रिप्ट से पढ़ना जो है आप हाँ अच्छा पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चैलेंज का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। वो ये ओके कि हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और आपको ओके जवाब में जो है वो किसी वर्ड पे बाउंसिंग, किसी पे प्रोलॉन्गेशन करना है। तो ओके जैसे मैं जानना चाहता हूँ आपके काम के बारे में, आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में मुझे विस्तार से बताना, हिंदी में छोटे छोटे वाक्यों ओके में। और बस ओके कॉन्शियसली इतना करना कि हर तीसरे चौथे पांचवें वर्ड में किसी वर्ड पे बाउंस कर लेना, फिर अगेन दो तीन चार वर्ड के बाद किसी वर्ड पे प्रोलॉन्ग कर लेना। और मैं जहां मैं मुझे डाउट होगा मैं पूछ लूंगा कि आपने अभी प्रोलॉन्ग किया था या बाउंस किया था। ठीक है, तो करना शुरू ओके करना सर। और मुझे अपने काम के बारे में बताना। ओके स्टार्ट। ओके सर, हिंदी में ना, राइट? हाँ, हिंदी में, हाँ। ओके सर, मैं अभी पे पे पेपाल में एज अ टे, टे, टेक लीड में जॉब कर रहा हूँ। मेरी कंपनी बैंगलोर में लोकेटेड है और मेरा टोटल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस 9+ इयर्स का है। और इस कंपनी से पहले मैंने हाँ और इस कंपनी से पहले मैंने 3-4 कंपनियों में भी वर्क किया है, वो भी डिफरेंट रोल्स में। और अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। से अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। परफेक्ट। पेपाल के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताना, वो जो सेवाएं दे रहे हैं। यस सर। जनरली सर, अब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो पेपाल एक, जैसे इंडिया में पेटीएम है, तो हाँ, बाहर की कंट्रीज में पेपाल है। ठीक है। और पेपाल मेनली पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इट्स लाइक पेमेंट प्लेटफॉर्म, पेमेंट गेटवे बोलते हैं। सो एंड इट इज वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड, पेपाल। और मतलब बाहर की कंट्रीज में मोस्टली पीपल इसको प्रिफर करते हैं एज अ पेमेंट। जैसे एक वर्ड पे बाउंस, यहाँ पे। एक वर्ड पे बाउंस, ओके एक वर्ड पे प्रोलॉन्ग। ओके ओके। बाहर की कंट्रीज में लोग इसको पी पी प्रिफर करते हैं एज अ पे पेमेंट गेटवे। और ये एज अ पेमेंट वॉलेट के रूप में भी लोग इसको यूज करते हैं। और ये सबसे सिक्योर पेमेंट के रूप में माना जाता है, पेमेंट। एंड और इसका पेमेंट लाइक डेबिट कार्ड्स भी हैं, लाइक इट इज पेमेंट डेबिट कार्ड्स। गुड, 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 गुड। और पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? एक वर्ड पे बाउंस, एक वर्ड पे प्रोलॉन्ग। हाँ, पेमेंट गेटवे का मतलब होता है, जब हम किसी से फ्लिपकार्ट है, जब हम हम्म, अपने परचेज करते हैं और जब हम लास्ट पेज पे जाते हैं, तो हमको वहाँ ऑप्शंस मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, लाइक वीजा, मास्टर। हम्म, वैसे ही वी विल गेट अ ऑप्शन पेपाल, हम्म। सो वी कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन एंड मेक अ पेमेंट। हम पेमेंट कर सकते हैं ये। परफेक्ट, गुड। तो बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं गजेंद्र। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप फोन पे श्योर किसी श्योर। अजनबी से बात कर रहे हैं तो अपने सामने एक कागज रख लो याद दिलाने के लिए। उस कागज पे लिख लो एक पे बाउंस, एक पे प्रोलॉन्ग। या आप लिख लो स्माइल, भले ही वो आपकी स्माइल ना देख सके,
भले ही वो आपकी स्माइल ना देख सके, आप फोन पे बात कर रहे हैं, मगर फिर भी आपके पेपर पे लिख के सामने रखो, स्माइल, बाउंस, श्योर प्रोलॉन्ग। या श्योर। आप लिख सकते हैं ब्रीद। हम लोग कई बार इतने एक्साइटेड होते हैं बात करने में कि हम सांस लेना भूल जाते हैं। हम एक ही सांस में बहुत सारी बातें बोलने का प्रयास करते हैं, फिर हमें याद आता हाँ है, सर, मतलब अभी कुछ मैं रिलैक्स। शेयर करना चाहता हूँ। कितना, हाँ अभी हाँ 6 महीने पहले का बात है। मेरी कंपनी का, हाँ मेरे मैनेजर से मेरी मीटिंग चल रही थी। हाँ तो कुछ हमारा प्रोजेक्ट था। तो हम्म, मैनेजर ने सडनली बोल दिया, मेरा दिमाग कहीं और था। सडनली हाँ बोलिया, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस, कैन यू एक्सप्लेन, आप हाँ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ और वहां पे मतलब ऐसा ब्लॉक आ गया ना मेरे को, मैं लाइक पूरा बॉडी का पूरा ताकत लगा रहा हूँ हाँ कि हाँ वर्ड्स हाँ बाहर आए ऐसे, लाइक कुछ भी करके वर्ड्स हम्म, बाहर ही नहीं आ रहे थे। हम्म। तो फिर आपने क्या तो किया? फिर वो फिर समझ गया। मतलब उसको मैं पहले मैंने बोला थी, मैं कुछ टाइम तो समझ गया। उसने बोला, हम्म, टेक योर टाइम, हाँ डोंट बी इन रश, हम्म। और ड्रिंक ऑफ वाटर। यार, बोलना ड्रिंक है। बोलना बोलना था, पानी क्या पिला रहे हो, बियर पिलाओ। तो मैंने थोड़ा सॉरी, टाइम रिकॉर्ड। लिया, फिर टाइम लेके हाँ फिर स्लोली स्लोली। हाँ, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है ना, तो ऐसे मौके पे ब्लॉक में जब आपको लगे, अब जैसे आपको लगे कि मैं ब्लॉक में हूं, तो उस विशेष साइकिल को तोड़ना है। गहरी सांस लेके, 2-3 गहरी सांस लेनी है, मुस्कुराना है, और फिर से स्टार्ट करना है। ओके। उसी वर्ड को दोबारा बोलना है। इसी को बोलते हैं कैंसिलेशन। कंसुएशन। ठीक है। अगर मैं मान लो मुझे एक वर्ड बोलना है, प्रोस्टाग्लैंडिन, एक मेडिकल टर्म है ये, कि मैं कह रहा हूँ बॉडी से रिलीज होती हैं। जैसे मुझे लगा कि मैं ब्लॉक में चला गया हूँ, तो मैं रुकूंगा, एक सांस लूंगा, मुस्कुराऊंगा थोड़ा सा, प्रोस्टाग्लैंडिन। बॉडी में बहुत सी प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं, वो रिलीज होती हैं। तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ। तो ये इसी को कैंसिलेशन भी बोलते हैं, कि जब आप ब्लॉक में हैं और आपको समझ में आ गया कि हाँ मैं ब्लॉक में हूँ, पिछले 2 सेकंड से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन कोई वर्ड बाहर नहीं आ रहे, तो स्ट्रगल करना बंद करना है। यानी च, यानी चाबी को ऑफ कर देना। जैसे आप ट्रैफिक लाइट में फंस गए हैं, तो बेकार में क्यों इंजन को रन करना, तो आप इंजन ऑफ कर देते हैं, आराम से अपना फोन निकाल के कुछ करने लग जाते हैं। आपको मालूम है कि आधे घंटे से पहले ट्रैफिक खुलने वाला नहीं है। उसी तरह से ये भी यस करते सर। हैं। तो अभी आपने बहुत बढ़िया किया। अब हम थोड़ा सा वापस जाते हैं मेन सेशन में, और फिर से वापस आएंगे यहाँ पे। ओके सर, श्योर। मैं, हाँ, तो मैं इसको ब्रेकआउट को बंद करता हूँ मैं। तो अ, वी वी विथ ए मी मी मीटिंग, ऐसा। और फिर टी सा फॉर्मली वीगन विथ ए मीटिंग, ऐसा। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये काम कर सकता है। मतलब हर एक पे हमें थोड़ा सा पेशेंट के साथ ही करना पड़ेगा ये। चलो फिर लीव करते हैं ना मीटिंग रूम, है ना? कुछ हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई यूज टू लाइक डिलीवर द लेक्चर्स टू द ओपन क्लासेस। मतलब ओपन मतलब तो कोई बेंच पर कोई बैठा नहीं है। तो मैं 2-4 बार मतलब ऐसे ही बेंच को पढ़ा के आता था, फिर एक्चुअल क्लासरूम में आता था। समझ गई बात को? okay guys, so how was your experience? A quick feedback. Did everyone do bouncing and prolongation? And did everyone enjoy? And did everyone smile when they were doing bouncing and prolongation? So I'll get a quick feedback from Arham. Arham, आपका फीडबैक क्या है? सर मेरे साथ तो तो तुषार थे, तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहे थे कि मैं रीडिंग करते हुए काफी सीरियस था, मतलब बहुत सीरियस होके पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा स्माइल कर लो। तो मेरा ऐसा। हम लोगों ने पता नहीं क्यों स्टैमरिंग को इतना सीरियस बिजनेस बना लिया है, जबकि दुनिया ये मानती है कि इट्स ए लाफिंग बिजनेस।
और हम लोग को भी दुनिया के साथ शामिल हो जाना चाहिए कि हाँ, इट्स ए लाफिंग बिजनेस, वी शुड ऑल्सो लाफ। लोग कहते हैं कि एबिलिटी टू लाफ एट वन सेल्फ इज ए साइन ऑफ ग्रेटनेस। और हम लोग ग्रेट लोग तो हैं ही, है ना, हम लोग ग्रेट लोग हैं। तो मतलब ये है कि we should have no problem in some time laughing at ourselves. I am not saying laughing in a bad sense, feeling bad, अंदर से हर्ट हो रहा है, दिल दुखी है, मगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि आई एम ए टफ गाय मुस्कुराकर। उस किस्म का एक्टिंग नहीं, मगर जस्ट laughing at everything, because when you analyze life and the world and everything, you find there is a lot to laugh, because because life is like a big drama. Shakespeare said, men and women are actors, the world is a stage. So, and in this stage, some people are doing funny things purposely, some people are doing funny things without realizing. So we can afford to laugh. And when you laugh, the bitterness of stammering goes out and it becomes more manageable. You can manage your stammering a lot better when you are able to laugh at it. इसके ऊपर भी एक कोर टास्क है जहां पे आपको स्टैमरिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाना है, अपनी स्टैमरिंग से या किसी की स्टैमरिंग से। So, okay, so I hope everybody did some bouncing and prolongation both. Okay, so everyone has done. Rajnikant, what is your feedback? Sir, we have done both bouncing and prolongation. I had I enjoyed most when I was doing bouncing in each word. Uh, uh, yeah, like if we keep doing the bouncing, then so we will inculcate the habit of bouncing at the word where we tend to stutter, rather than using a different word at that time. Yeah. Very true, very true, Yes, sir. very true. I'm not saying that using a different word is bad, because because this kind of revision is a normal thing. For example, I am talking about something and suddenly, and I've said something, and within a split second, I come up with a better word because that word conveys my sense better. Right. And so therefore, I repeat the sentence, but this time I use that word. So I'm revising my sentence for the sake of comprehension, accessibility, and understanding, Right. not out of fear. So when you use a better word because it is a better word, and because it communicates better to your audience, that is totally fine, and that should be done. And that everybody does. We all say something and then immediately we revise the sentence or we change the sentence. You must have seen. हेलो भाई साहब, हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ श्रीमान जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले मैंने किसी को भाई साहब बोला, फिर श्रीमान बोला, है ना? किसी को पहले मैंने जनाब बोला, फिर मैंने उसको बोला अरे दोस्त कहाँ जा रहे हो यार? तो पहले मैंने किसी को जनाब बोल दिया, किसी को दोस्त बोल दिया। तो ये रिवीजन जो हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें एवरी सेकेंड हमारे दिमाग बेटर वर्ड दे रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है इससे अच्छा ये लफ्ज है, इसको इस्तेमाल करो। तो ये तो ठीक है, लेकिन चेंजिंग वर्ड आउट ऑफ फियर generates even more fear. It's like a blackmailer. A blackmailer comes to you and shows you something embarrassing and says 5,000 अभी ट्रांसफर करो। और अगर आप कर देते हो तो आपको क्या लगता है कि वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा? नहीं, अगले हफ्ते वो फिर आ जाएगा और इस बार वो 5,000 नहीं मांगेगा, इस बार वो 10,000 मांगेगा कि उसके मुंह में खून लग गया अब। ठीक है, तो जितनी बार आप अपने डर को पैंडर करते हो, आई मीन इफ यू पैंडर टू योर फियर, इफ यू लिसन टू योर फियर, इफ यू ओबे योर फियर, you are only increasing your fear, you are making it stronger. It's just like paying to a blackmailer. Someone blackmails you and then you immediately say अच्छा 5,000 ले लो, मेरा पीछा छोड़ दो भाई। वो कहता हाँ मैं आप छोड़ दिया तुम्हारा पीछा, 5,000 लेके जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। अगले हफ्ते वो फिर आ जाएगा
and this time he'll be asking for 10,000. After 1 month, he'll come back again. This time he'll be asking for 20,000. So therefore, changing a word out of fear is discouraged. But changing a word because that is a better word technically or linguistically, that is totally fine, and that is encouraged. So, Rajnikant, did you learn anything new about bouncing and prolongation as you practice it today? Yes, sir. Uh, in each word, we tried to do the bouncing, and so whenever I was bouncing in each word, I was bit of relaxed. I was Hmm. uh, not under stress when I was bouncing or doing the prolongation. Thank you so much, Rajnikant, because what you said is a very important observation. Uh, Between two bounces, one should be relaxed. right, If you're sir. not relaxed between two bounces, very soon your bouncing will degenerate in stammering. Right. So I'll give an example. Suppose my name is Tushar and somebody says, "What's your name?" And I say, Tushar. So I started bouncing, but bouncing became stammering. So Correct. between two, I should totally relaxed. So ideally, it should look like this. My name is Tushar. Correct. And if I'm not relaxed, if anxiety is still there, will I be able to say it or not? Then chances are the speed will increase and bouncing will change into stammering. So it's very important that between the bounces we are relaxed, we are in control. So it should be to sharp. You can speed up a little bit, but still you should be in control. You can say to sharp. ये भी चलेगा, ठीक है ये. But Yes. you should not be anxious in a hurry. It should not become an uncontrolled kind of slide downwards. To तुषार ये ना होने पाए. But you can say my name is Tushar. Tushar ये चलेगा. So that's very very important observation. और अगर कभी बाउंसिंग करते करते वो हकलाने में बदल जाए तो क्या करना चाहिए? अपना सर नहीं पीटना है, घर नहीं चले जाना है मैदान छोड़ के, दोबारा से शुरू करना है, थोड़ा स्लो डाउन करना है. अगर एक दो बार ऐसा हो भी गया कि मैं बाउंसिंग कर रहा था तुषार और वो स्टैमरिंग बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मातम मनाना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कोई टेक्निक काम नहीं करती, सब बकवास है, मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा. ऐसा नहीं, बल्कि फिर से करिए और थोड़ा सा अपने स्पीड को कंट्रोल करिए. दैट्स ऑल. Okay. Okay, so we will go back again to breakout rooms, and this time we will practice a little pausing. Pausing also is a very important tool. And as Rajnikant pointed out, when you are pausing, same way like bouncing, in the pausing also you should be totally relaxed when you are pausing. Some people are, they get very restless कि मैं पिछले 2 सेकंड से चुप हूं, अगला क्या सोच रहा होगा, ये तो गूंगा है, इसको बोलना नहीं आता. तो वो they become very restless. They become very impatient with the pause. That should not be. In pause, you should totally pause and relax, and if you can afford and if you can do, smile a little bit, maintain the eye contact with the other person, smile. And if you're talking to more, if you're talking to a group, then you should make eye contact with each individual. इधर भी देखा, उधर भी देखा, पीछे वालों से भी आंखें मिलाई, उधर भी देखा, फिर आगे का वाक्य बोलना शुरू किया. सो we will use the same document. There's a document for pausing also. There's English paragraphs also, where you can even make your own rule that after every two words I will pause for 5 seconds. I'll mentally count 5. मेंटली काउंट करूंगा 5 तक, फिर मैं अगला वर्ड बोलूंगा. और या आप ये कह सकते हैं कि मैं एक पूरी सांस लूंगा, कि जैसे आपने बोला ए ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर ए लेजी काउ. तो आप सांस भी ले सकते हैं, मेंटली काउंट भी कर, सांस लेना ज़्यादा अक्लमंदी है. सो लेट मी पुट यू बैक इनटू द ब्रेकआउट रूम. दिस राउंड विल बी लाइक 5 minutes.
at okay. Mary Kate stared at her outfit in the mirror. Brand new sparkly red shoes, blue shorts, and a blue and white striped t-shirt. She wondered what she needed to balance the stripes. Her red sparkly backpack had helped, but she needed something else. She sighed and looked through her bow box. A bow was definitely what she needed. So, you have any feedback? In the pause, are you taking a deep breath? I Just try am taking a actually deep breath. okay. I'll try taking a deep breath. Yes. She placed a plain navy bow in her long brown hair ha- and sighed again. Mary Kate had uh, tried very hard to create a seaside theme because she knew it would make her feel better. If everything in her suitcase matched, nothing terrible would uh, possibly happen. Only she didn't own nearly enough nautical type clothes. I I'm finding it difficult to use pausing technique actually. Because you're not taking a deep breath. I think you should take a deep breath when that happens. So I'm sharing a document. It's a poetry, and maybe I should give a little demonstration also. So, did you get the link? It's a Yes. poetry by Robert Frost. Yes, sir. So, Yogeshwari, can you see the poetry? Yes, sir. Just click on the document, huh? So I am reading this poem, and I'll take pause and I'll take deep breath also. Watch my face. The road not taken. Sir, your video is off. Okay. Acha, okay. Okay. Let me see. Yes. So, yes. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood. And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there. So this is how you're supposed to rest. When you take a pause, forget about the world. Let the world wait. Okay, so I'll ask Yogeshwari to read this. Over to Yogeshwari. Yes, sir. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and
sorry, I could not travel both. टेक ए डीप ब्रेथ. And अभी भी आप जल्दी में हैं. and अभी अभी इवन नाउ यू आर इन ए बिट ऑफ हरी. टेक ए डीप ब्रेथ. Like take a deep breath, and when you are releasing, then you should say the line. The road less traveled. फिर से start again, Yogeshwari. the road not taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair. Good. अभी क्या है? अब विद्या की बारी. विद्या, your turn. You can read this poem or whatever. If you got something else in your front, you can read that also. But you have to practice pausing just like this, a long pause. Okay. I will read this itself. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not You are travel both. you are not prevented from doing bouncing or prolongation. You can do that here also. Okay, So you okay, can say okay, two roads met in a yellow wood, right? okay, okay, Or you can okay, even prolong it. You can say two roads met in a yellow wood. okay, okay, Yellow wood. Yes, okay. go on. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. I'm actually stammering. Okay. You use technique, because when you don't use technique, of course you will stammer. So for example, travel you could say I could not travel both. थोड़ा सा prolong, stretch the word a little bit. I could Okay. not travel both. Yes, go on. One small doubt. Yeah. I stammer every time when I say I or a word and all. I stammer sometimes. I mean, I observe that it quite happens and it becomes very habitual if I think like that word. In the Yeah. do you have any training in classical music? Do you have any Yes. exposure? So in the morning when you get up, do a little alap. You know Okay. alap? Yeah. Alap. Try some alap. Okay. That will really help you. Okay. So whenever you have to say vowel sound, think that you're doing a alap. So Okay. apple is not apple, but apple is apple. Okay. Apple. I is not I is I. I I and am going to Birmingham. okay. I am going to India next week. So stretch that sound a little bit. And if you practice alap, that musical alapna, every morning, then it becomes second habit, second nature. Okay. You'll Okay. speak every word in a little stretched way. Okay. Go on. Uh, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just
as fair, and having perhaps the better claim. Good, very good. So keep on practicing reciting poetry, record them, and share them in Telegram group. Yeah, We I'll would do like that. to. I would like to listen to these and then give you feedback. Now we'll do a little another game, Yogeshwari. I will ask you something, and आपको 5 सेकंड रुकना है, ऐसे करना है और तब बोलना है, ठीक है? आपका नाम क्या है योगेश्वरी? Okay, sir. आपका नाम क्या है? Yogeshwari. Very good. Same game with Vidya. I'll be asking questions randomly. But you don't have to answer immediately. First, you have to play this little game. You have to, put down these 5 fingers. When it is fist, then you have to give the answer. So, are you right now in UK? Yes, I am in the UK. Correct. Yogeshwari, are you a Marathi? हो, मी मराठी आहे. आपने उंगली किया? Did you do Yes, this? sir. अच्छा, Yes. दिखा के करना, दिखा के। मैं जानना चाहता Okay, हूँ कि आप लोग कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? चीटिंग। अच्छा, योगेश्वरी, आपको कौन सा मराठी एक्टर अच्छा लगता है? मुझे शरद केळकर अच्छे लगते हैं क्योंकि वो भी स्टैमरर थे और अभी वो स्टैमरिंग को क्योर कर सके. महाराष्ट्र इलेक्शन में कौन जीतेगा? Who will win the election? I think BJP महायुति सरकार. Okay. Because So, I vote them. ठीक है. Next question to Vidya. Does Lakshmi stammer, your husband? No, my husband do not stammer. I, I was just pulling your leg. I wanted to see whether you will say no immediately or not. So we will have one more round where you don't have to use your fingers, but you have to mentally count 1, 2, 3. When it is 5, then you have to start answering. Because stammerers, we have fallen into this bad habit of being in a great hurry to answer immediately. And because of that great hurry, we are not able to use any technique. There's a very well-respected technique called gentle onsets. Name itself is gentle onset. But who has the time to do the gentle onset? We want to immediately launch ourselves in that word. And so therefore we stammer. तो अभी हम mentally जो है वो mentally count करेंगे 5 and then we will say. So Yogeshwari, are you in hostel now? Hurry up. No, sir. Okay. I'm a day schooler. Okay. Vidya, what time is it in UK right now? It is 3:15, close to 3:15. Perfect. So this is what we have to do. Practice it whenever you make a stranger phone call. Whenever you make a stranger phone call or even to friends, make it a rule that when they say hello, I will count mentally 5 and then I will answer. So if somebody says, hello, Yogeshwari, you don't have to say, हाँ क्या हो गया, क्या बात है? You don't have to respond like this. If somebody says, hello, Yogeshwari, you mentally count 3, 4, 5 and then say, हाँ, Yogeshwari बोल रही हूँ, क्या बात है? So practice it on phone, practice it with people, that before you reply, count mentally 5 and then speak and then say whatever you want to say. This is what pausing is all about. If you do it consistently, regularly for even 7 days, it will gradually become your habit. So let us close the meeting because it's almost like we have already overshot the time.
And Vidya, I liked your interview with Lakshmi. I Thank you. I really enjoyed it. It was a good discussion. Thank you. But it was short. And I'm impressed that Lakshmi already knows about acceptance and all that. He has been listening to, as he said, Yeah, I think listen. he has been listening to my podcasts also. So yeah, yes, probably a good idea. Good, great. So whom are you going to interview next? I am still in search for a WWS. I mean, Nidhi is currently a little bit, I think she wants to do the mock interview first. I think she's getting mentally prepared for that. Yeah. Okay, fine, good. If you Good. could recommend somebody, it would be I'll do really. that. I'll do that. I'll keep an eye out. So welcome back, everyone. I hope everybody had a good experience, good practice. And remember, practice is the only thing which can make you perfect. Stammering will not do. स्टैमरिंग से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. And every day you are getting many chances to do this. You are phoning friends, you are phoning your colleagues. Even when you are phoning your colleagues, you can do a little bit of gentle stammering or a little bit of bouncing, or you can do a little pausing when they say hello to you. As I was sharing it with Yogeshwari and Vidya, whenever you get a call and somebody says hello, you don't have to immediately start talking. That is a poor technique, because when we immediately start talking, then we are not able to use any technique, we are not able to think what to say, so we just fumble through, and that is not what you really want. So whenever you get a call, somebody says hello, is it Ankit? Then what will Ankit do or say? Tell me, Ankit. Suppose I phone you and say hello, is it Ankit? What will you do? I will simply acknowledge it. Yes. No, no. You should mentally count 1, 2, 3, 4, 5, and then say, yes, I am Ankit. Oh, Because immediate response develops a pattern of habitual hurry. You're hurrying through everything. The other person who has said hello, is it Ankit? He can wait for 5 seconds, yep. right? So this is this is one way of practicing pausing. Pausing is not only that which you put consciously between two words in a sentence. No. Pausing is this also, that when somebody phones you, you don't immediately respond. Hello, is it Sachin? हाँ मैं बोल रहा हूँ. This is what many of us end up doing on phone. So whenever you get a very hurried call, other person is already in a tailspin. The other person has already succumbed to pressure. But don't let that pressure get into you. Don't get infected by that pressure. हेलो सचिन, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ क्या बात है, हाँ क्या हो गया. ये हमें नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ दैट, अगले आदमी को होने दो पागल, अगर वो हो रहा है, अगर उसकी चॉइस है तो. मगर आप पागल मत बनो. आप आराम से बात करो, रुको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए. और शुरू में आप एक रूल बना लो कि मैं 5 सेकंड काउंट करूंगा. 1, 2, 3, 4, 5. हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ सचिन, क्या बात है, हाउ कैन आई हेल्प यू. आप ये कर सकते हैं. तो ये करना है आप लोगों को. फोन पे प्रैक्टिस करना है, बातचीत में भी करना है. बातचीत में भी 2 शब्दों के बाद रुकना है जरा. और इसका एक अच्छा तरीका है इसको करने का, रिसाइटिंग पोइट्री और शायरी. बहुत सारी शायरी पोइट्री है इंटरनेट पे, उसको आप पढ़िए अच्छे ढंग से, आराम से, और उसको रिकॉर्ड करिए और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए. सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम. I must get into bed at a proper time, otherwise I won't be able to get up in the morning. So everyone, thank you so much. It was a pleasure to work with you. And remember, practice is very, very, very important.
So if somebody has got a last concluding thought, I will invite, let me invite Dr. Vijay. Last concluding thought. हेलो सर, हाँ बोलिए. am I audible? हाँ, yes, you are audible. Yes, sir. I think practice is most important. प्रैक्टिस से अगर हम कुछ में मुंह मोड़ लेते हैं, आई मीन इफ वी डोंट प्रैक्टिस इट, तो पूरा भूल जाएंगे हम सर, कुछ उसका ये मतलब नहीं रहेगा। यही है। तो मैंने तो खुद ये शुरू किया, कल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल माय व्हाट यू जूनियर्स, मेरे से असिस्टेंट प्रोफेसर है अभी, मेरे साथ रिसर्च करने जा रहे हैं, तो फिर कल मैं उनका ही इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, इसका स्टैमरिंग इंटरव्यू, कि आप मेरे साथ 3 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कितनी सारी पब्लिक एक मीटिंग की है, तो आपको क्या लगा कि मेरे बिहेवियर में क्या क्या अंतर आपको लगे? तो मुझे अगर इम्प्रूवमेंट करना है, वो तो थोड़ा शर्मा जाएंगे क्योंकि वो मेरे जूनियर है, लेकिन फिर भी मैं पूछने जा रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, मैं पूछ के मैं वीडियो डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे उनमें से लगता है उनमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाँ नहीं नहीं हो पाएगा सर। ये बहुत हाँ बहुत अंदर तक गए हैं, नहीं प्रैक्टिस करने से ही हाँ. ये जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिस करना बहुत परफेक्ट. जरूरी है। परफेक्ट. और स्टैमरिंग इंटरव्यू में अगर कोई थोड़ा बेशर्मी से आपको जवाब भी दे दे कि हाँ आप हकलाते हैं, तो उसको दिल पे मत लेना. ऐसा भी हो सकता है, दिल पे नहीं लेना है. स्टैमरिंग इंटरव्यू में कई बार आपको ऐसे जवाब भी मिलते हैं जो आपको हिला देते हैं, मगर उसको दिल पे नहीं लेना और आगे बढ़ना है बस. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. गुड नाइट.